Hello everyone, I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is Magic Mind series by Galaxy Publication and here is a book Pebbles of Grammar. So let's start chapter number 10, verbs, which are also known as doing words. Let's move on to let's learn. So the doing words are called verbs. जो doing words हैं उन्हें हम verbs कहते हैं and verbs tell us what people, animal or things do. Verbs बताते हैं कि कोई person, कोई animal या फिर thing क्या कर रहा है. Now let's look at some of the examples here. First one is the boy rides the horse. Boy क्या कर रहा है? घुड़सवारी कर रहा है. Second, the horse runs fast. Horse क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है. Third, I wrote a letter. मैंने एक letter लिखा. And the fourth one is the peon rang the bell. Peon ने bell को बजाया. So sometimes verbs consist of more than one word. कई बार क्या होता है जो verbs हैं उनमें एक से ज़्यादा words होते हैं. तो जितने भी ये कलरफुल वर्ड्स हैं ये सारे वर्ब्स हैं और कई बार ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमें मिल सकते हैं. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. पहला है द डॉग वॉज वॉकिंग एट द स्ट्रेंजर. तो यहाँ पे वॉज और बाकिंग दोनों ही यहाँ पे वर्ब्स हैं. नेक्स्ट द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल. बॉयज फुटबॉल खेल रहे थे. यहाँ पे वर और प्लेइंग दोनों ही वर्ब हैं. अगेन मदर इज बेकिंग अ केक. इज और बेकिंग दोनों ही यहाँ पे वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं. Some verbs have a definite object on which or for which the action is being performed. कुछ ऐसे verbs हैं जिसमें आपको मिलेगा एक definite object. अब वो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट जिस पे जो है वो काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्शन को. The verbs that have a definite object are called transitive verbs. वो verbs जिसके पास एक definite object दिया गया है उन्हें हम transitive verbs कहते हैं. For example, she is plucking flowers. Here the verb is plucking. यहाँ पे जो verb है वो है is plucking and the subject is she. कौन काम को कर रहा है? प्लक करने के काम को she काम कर रही है इसलिए she यहाँ पे subject है. Now what we have to do? We have to ask the question. Question पूछना है what is she plucking? वो क्या प्लक कर रही है? तो आंसर क्या आता है? The answer is flower. Flowers प्लक कर रही है. We see that there is a specific object on which the action of flower is being done. So हम यहाँ पे देखते हैं कि एक specific object है यहाँ पे जिस पे ये काम हो रहा है. Some verbs do not require object on which or for which the action is being performed. कुछ ऐसे verbs होते हैं जिसको object की जरूरत नहीं होती है and they are called intransitive verbs. उन्हें हम intransitive verbs कहते हैं. For example, the boys are playing. Boys खेल रहे हैं. So यहाँ पे आप देख सकते हो are playing जो है हमारा verb है and now we have to ask a question what are the boys playing? बच्चे क्या खेल रहे हैं? So there you can see there is no answer. There is no answer. बच्चे क्या खेल रहे हैं नहीं पता, बस ये पता है कि बच्चे खेल रहे हैं. So playing is an intransitive verb. यहाँ पे जो word playing है वो एक intransitive verb है. Now let's quickly move on to let's practice A exercises. Underline the verbs and write their types as transitive or intransitive. आपको verb को underline करना और बताना है कि वो transitive है या फिर intransitive. So here the first one is I like apples. यहाँ पे जो verb है वो है like. तो अब हमने क्वेश्चन पूछा what she likes. तो आंसर आ रहा है apples. Apples यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. So ये जो like है ये है transitive verb. Similarly next है they play football. तो हम क्वेश्चन पूछेंगे what are they playing? So आंसर आता है फुटबॉल. तो फिर ये भी जो है ट्रांजिटिव है. प्ले इज ट्रांजिटिव. नाउ थर्ड वन इज शी सिंग्स अ सॉन्ग. वो गा रही है. क्या गा रही है? आंसर आता है सॉन्ग. सो अगेन यहाँ पे सिंग्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट फोर्थ वन द डॉग बार्क्स. यहाँ पे वर्ब क्या है? बार्क्स. डॉग क्या भौंक रहा है? कोई आंसर नहीं आ रहा तो ये है intransitive. Similarly, the baby is crying. बच्चा रो रहा है. क्या रो रहा है? नहीं, कोई आंसर नहीं आ रहा है. Again, it is intransitive. Crying is intransitive verb.
6 1 द चीता रन्स फास्ट, चीता क्या दौड़ता है, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, runs is intransitive verb. 7th है grandpa is reading the newspaper. So grandpa न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, grandpa क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़ आंसर आ रहा है तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट 8th one, she wore a gold ring. उसने क्या पहना, गोल्ड रिंग पहना. अगेन ये है ट्रांजिटिव वर्ब. So like this you have to do question number 9 and 10 yourself. Now let's move on to B exercise, which is pick out the verbs and objects. यहाँ पे हमें verbs और objects को अलग अलग करना है. So here the first one is the cow is eating grass. यहाँ पे जो हमारा verb है वो है eating and cow क्या खा रही है, आंसर आ रहा है grass खा रही, तो grass हमारा हो गया object. अगेन सेकेंड बनी फ्लाइज काइट्स, बनी जो है फ्लाई कर रहा तो फ्लाई हमारा वर्ब हो गया और काइट्स हो गया ऑब्जेक्ट, क्या उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शी इज बेकिंग अ केक, तो बेकिंग हो गया हमारा वर्ब एंड क्या बेक कर रही है, केक, तो केक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट 4th one, द पियोन रिंग्स द बेल, सो रिंग करना वर्ब हो गया, क्या रिंग कर रहा है, बेल, तो बेल हो गया ऑब्जेक्ट. सिमिलरली 5th one, द फिश लिव्स इन वाटर, तो यहाँ पे रहना हो गया काम एंड क्या रहती है फिश, नो आंसर इज कमिंग, सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर. सिमिलरली यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6 and 7 yourself. Now let's move on to let's learn. So look at these sentences. यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है. पहला है he walks to school, वो स्कूल चल के जाता है. they walk to school, वो चल के जाते हैं. So in sentence 1 the verb is walks because the subject is singular. जो पहला sentence है उसमें आप देख सकते हैं walks लिखा है क्योंकि जो subject है वो एक है, singular है. In sentence 2 अगर हम sentence 2 की बात करें तो verb क्या है, walk बन जाता है, वॉक्स का वॉक बन जाता है. क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ये है हमारा सब्जेक्ट दे जो कि प्लूरल है. सो इन बोथ द सेंटेंसेस द गिवन वर्ब्स अग्री विथ देयर सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन. दोनों ही सब सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है, चाहे वो नंबर में हो या फिर पर्सन में हो. So the verb has a definite relation with the subject in number and person. इसलिए जो verb है उसका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ नंबर या फिर पर्सन में. Such verbs are called finite verbs. ऐसे verbs को हम finite verbs कहते हैं. So a finite verb has a definite relation with the subject in number and person. जो finite verb है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट रिलेशन रखता है सब्जेक्ट के साथ, नंबर और पर्सन के केस में. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को आप देखें. ही लव्स स्विमिंग इन अ पूल, उसे जो है स्विम करना अच्छा लगता है पूल में. आई हर्ड द लायन रोरिंग, मैंने लायन को रोर करते हुए सुना. शी नीड्स टू गो टू स्लीप, उसे जो है सोने जाना है. सो इन सेंटेंस 1 द वर्ड स्विमिंग इज अ वर्ब. जो पहला सेंटेंस है उसमें स्विमिंग जो है ये एक वर्ब है, बट इट इज यूज एज अ नाउन एंड डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब. लेकिन ये नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा. इन सेंटेंस 2 द वर्ड रोरिंग इज अ वर्ब. अब यहाँ पे अगेन रोरिंग जो है एक वर्ब है, लेकिन ये भी यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है और ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा. इन सेंटेंस 3 द फ्रेज टू स्लीप इज एक्टिंग एज अ नाउन. यहाँ पे जो थर्ड है उसमें टू स्लीप लिखा है, ये भी नाउन की तरह ही काम कर रहा है. सो द वर्ब्स विच डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन परफॉर्म, वो वर्ब्स जो एक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं सब्जेक्ट के द्वारा इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इन्हें हम नाउन्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के रूप में यूज करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. इन्फिनिटिव्स, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स. इन 3 फॉर्म्स में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. अब ये जो सेंटेंसेस दिए इन्हें देखते हैं. शी वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहती है.
सो इन दिस सेंटेंस द मेन वर्ब इज वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, वो चाहती है। टू गो इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो टू गो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इट इज एन इन्फिनेटिव, ये एक इन्फिनेटिव है। द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब फॉलोड बाई टू। सो यहाँ पे जो बेस फॉर्म है वर्ब का, उसको टू के साथ लिखा जा रहा है, इसलिए इन्फिनेटिव है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम टू फॉर्म भी कहते हैं वर्ब का। हियर द वर्ड टू इज नॉट अ प्रेपोजिशन, यहाँ जो वर्ड टू है वो प्रेपोजिशन नहीं है, एंड इट इज ऑफन कॉल्ड द साइन ऑफ द इन्फिनेटिव, इसे यह है इन्फिनेटिव का साइन कहा जाता है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमें देखना है। आई लव राइडिंग अ हॉर्स, मुझे हॉर्स को राइड करना अच्छा लगता है। सो इन दिस सेंटेंस राइडिंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, इस सेंटेंस में जो राइडिंग है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एंड इट इज अ जेरेंड, वो एक जेरेंड कहलाता है। सो जेरेंड इज अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, जेरेंड क्या है? ये एक नाउन है जो वर्ब से बनता है, एंड इट इज अ वर्ब फॉर्मिंग एंडिंग इन आईएनजी। सो ये एक ऐसा वर्ब है जो एंड करता है आईएनजी, मीन्स इसके लास्ट में आपको हमेशा आईएनजी जरूर मिलेगा। इट इज अ वर्ब फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी, ये एक वर्ब फॉर्म है जो हमेशा आईएनजी से खत्म होगा। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, यहाँ पे एक और सेंटेंस हमें दिख रहा है। शी एट बेक्ड फूड, उसने जो है बेक किया हुआ खाना खाया। सो द वर्ड बेक इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, बेक जो वर्ड है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एंड इट इज द पास्ट पार्टिसिपल, a type of adjective. Past participles usually end in ed, d, t, en और n, जो past participles हैं वो ज़्यादातर इससे ख़त्म होते हैं। Now read this sentence. Reading is his favorite pastime. So the word reading in this sentence is a non-finite verb. ये एक non-finite verb है यहाँ पे, and it is present participle. ये एक present participle form है। Here are more examples of non-finite verbs. यहाँ पे कुछ और examples दिए हैं। पहला है to dance is her passion. So यहाँ पे डांस के साथ to को लगाया गया है, तो ये है infinitive जिसको noun की तरह यूज किया जा रहा है। She likes to paint, again यहाँ पे जो है infinitive है जिसे हम object के रूप में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ask him to bake a cake, यहाँ पे to bake जो बीच में आ रहा है, अगेन ये infinitive है जिसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर, यहाँ पे जो प्लेइंग वर्ड है वो एज अ जेरेंड यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के जगह पे रखा हुआ है। अगेन ईटिंग फ्रेश फूड इज गुड फॉर हेल्थ, ईटिंग यहाँ पे जो है जेरेंड है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। 6 डोंट वेस्ट टाइम स्टेयरिंग एट अ क्लोज डोर, सो यहाँ पे जो क्लोज वर्ड है वो एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। नेक्स्ट 7th वन आई मेट अ बॉय राइडिंग ब्लैक हॉर्स, सो यहाँ पे जो राइडिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। सो these are some of the rules that you have to learn. Now let's quickly move on to let's practice. So see exercises, pick out the finite and non-finite verbs from the sentences. हमें finite और non-finite verbs निकालने हैं sentences में से given below and put them in their proper blocks, और उन्हें उनके proper blocks में डालना है। तो आप देख सकते हैं finite verb और non-finite verb दो blocks यहाँ पे दिए हैं, इनमें यहाँ से हमें verbs को find out करना है और लिख। So here the first one is we like hunting, यहाँ पे like और hunting दोनों ही verbs हैं। like आएगा finite verb में and hunting आएगा non-finite verb में। Next, he went to Delhi to see the Qutub Minar, so went will come in finite verb and to see will come in infinite verb. Similarly, third one, the wounded animal is breathing fast, so is है हमारा finite verb और breathing हो गया infinite verb. Fourth one, I went there to see him, went है हमारा finite verb and to see हो गया हमारा infinite. Similarly, fifth one, sold articles will not be returned, so will not be returned
finite and sold आ गया infinite. Similarly 6-1 eating fruits is good for health, तो is आ गया हमारा finite और eating आ गया infinite. Next I saw a horrifying sight, तो saw आ गया finite and horrifying हो गया infinite. Next playing games keeps us physically fit, so keeps हो गया हमारा finite and playing हो गया infinite. So like this you have to categorize these infinite and infinite verbs and you have to do question number 9 and 10 yourself. Now place the selected non-finite verbs in the table given below. यहाँ पे अब एक टेबल दिया है, इसमें जो भी non-finite verbs थे उन्हें टेबल में लिखना है according to their categories, उनकी categories के according. So infinitive verbs gerund, present participle और past participle यहाँ पे इन columns में हमें लिखना है. So let's write them. So here we have written to see and to say in infinitive verbs, hunting, eating and playing in gerund, and in the present participle we have written breathing, horrifying, croaking, that's written here. So like this you have to find the rest and you have to fill it here. Now let's move on to the exercise, which is fill in the blanks with the non-finite forms of the verb given in brackets. So यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ verbs दिए हैं, उनको हम उनके non-finite form में लिखेंगे. So here the first one is the police wanted dash the thief, to arrest the thief. Now second one is we saw the dash sun yesterday, setting sun yesterday. Question number 3, a dash diet is a must to stay healthy, a balanced diet is a must to stay healthy. Question number 4, the dash rabbit hid in the bush, the frightened rabbit hid in the bush. Question number 5, dash the poor is a good habit, helping the poor is a good habit. Question number 6, the dash child was recovered by the police, the kidnapped child was recovered by the police. Question number 7, the girls were busy in dash problems, solving problems. Question number 8, dash in the morning is good for health, walking in the morning is good for health. Question number 9, dash horse is a good exercise, riding horse is a good exercise. Question number 10, I like dash old movies, I like to watch old movies. So like this we have to complete this exercise. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.